شمالی وزیرستان کے علاقے ایشام میں دیسی ساختہ بم پھٹنے سے 2 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار جاوید اقبال اور نائب حسین احمد شامل۔ علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری۔ اسحاق ڈار نئے وزیر خزانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق مفتاح اسماعیل معاشی ٹیم کا حصہ رہیں گے۔ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا آج پھر اجلاس ہوگا، پاکستان جانے کا آج حتمی فیصلہ ہوگا، بدھ کی سیٹ کرائی ہے۔ صحافیوں کے سوالات پر بولے آپ کہتے ہیں تو وزیر اعظم کے ساتھ ہی پاکستان چلے جاتا ہوں۔ عمران خان کی قومی اسمبلی میں واپسی کی مشروط پیشکش، کہا امریکی سائفر کی تحقیقات ہوں تو اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار کو ڈیل کر کے واپس لایا جا رہا ہے۔ معاشی تباہی کا واحد حل صاف شفاف انتخابات ہیں، مجرم سیاستدانوں سے بات چیت ممکن نہیں۔ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ مجھے نااہل کیا جائے، چوروں کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ اب کپتان پوری تیاری کے ساتھ اسلام آباد آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امریکہ کے بارے میں سابق حکومت کے رویے سے پاکستان کے مفادات کو متاثر کیا گیا۔ عام پاکستانی نہ یہ چاہتا ہے اور نہ اس کی توقع کرتا ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق وزیر اعظم نے کہا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ سابق حکومت نے جو کچھ کیا وہ سب غیر ضروری تھا، یہ پاکستان کے خود مختار مفادات کے لیے نقصان دہ تھا۔ AP کے مطابق شہباز شریف نے مزید کہا غلط فہمیوں کے خاتمے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا 4 لوگوں نے بند کمرے میں مجھے مروانے کا فیصلہ کیا، کہیں گے کسی انتہا پسند نے اسے مار دیا۔ وہ لوگ ابھی بھی اس سازش میں لگے ہوئے ہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ ملک کی آزادی کی فکر ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی عمران خان کو وارننگ، کہا کسی کو اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان آئے تو واپس نہیں جا سکیں گے، کوشش ہوگی طاقت کا استعمال احتیاط سے کیا جائے اور نقصان کم ہو۔ احتجاج پرامن ہوا تو کھانا بھی دیں گے۔ مسلح جتھے اس ساتھ لائے تو ان کو انہی کے انداز سے روکیں گے۔ رینجرز، FC اور پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا نفری نہ بھی بھیجیں تو مسئلہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کا 1/3 حصہ سیلاب سے متاثر ہوا۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق $23 ارب کا $30 ارب کا نقصان ہوا۔ پاکستان کا گلوبل وارمنگ میں حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ دوسرے ممالک کی وجہ سے ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ متاثرین کی بحالی یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری ہماری مدد کرے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نہ نمٹا گیا تو کل کسی اور ملک کو بھی آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان میں حالیہ سیلاب سے تباہی دل دلا دینے والی ہے۔ حالیہ سیلاب جیسی آفت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ IMF سے ڈیل میں داخل ہوتے ہی سیلاب تمام معاشی پلان بہا کر لے گیا۔ BBC کو انٹرویو میں مزید کہا وسائل کی کمی کے باعث سیلاب سے نمٹنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرین کی مکمل بحالی میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی۔ عالمی مالیاتی ادارے بنیادی انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کردار ادا کریں۔ ملک میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 1600 سے تجاوز کر گئیں۔ 24 گھنٹے میں مزید 10 افراد جاں بحق۔ تباہ کن سیلاب سے متاثر گھروں کی تعداد 20 لاکھ سے بڑھ گئی۔ 10 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہونے سے کروڑوں روپے کا نقصان۔ 13,000 کلومیٹر سڑکیں، 400 کے قریب پل تباہ ہوئے۔ مختلف علاقوں سے زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ دن کے مختلف علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، نکاسی آب نہ ہونے پر بیماریاں پھیلنے لگیں۔ اسحاق ڈار کو 7 اکتوبر تک عدالت کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ احتساب عدالت نے دائمی وارنٹ معطل کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا نواز شریف نے واپس جانے کی اجازت دی تھی، پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار مل کر یا پھر لڑ کر بھی معاشی حالات ٹھیک نہیں کر سکتے۔ دنیا میں پیٹرول سستا اور پاکستان میں مہنگا ہوگا۔ اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے نہیں، داد رسی کے لیے آ رہے ہیں۔ گولیاں اور ڈرون عوام کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ستمبر کے آخری یا پھر اکتوبر میں اہم سیاسی فیصلے ہوں گے، گیم پلٹ گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب میں تبدیلی لانے کا اندیہ ظاہر کر دیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا پنجاب حکومت کے رویے کی وجہ سے وہاں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تبدیلی ووٹ سے بھی آ سکتی ہے اور آئینی طریقہ کار بھی موجود ہے۔ کوئی صوبہ وفاق کو چیلنج کرے تو آئین میں کافی شقیں موجود ہیں۔ ووٹ نہ گرنے والے فیصلے کو بھی دیکھنا ہوگا۔ وفاقی حکومت فیصلے کے خلاف نظرثانی میں بھی جائے گی۔
वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब हुकूमत गिराना नून लीग की ख्वाहिश ही रहेगी। हमारी हुकूमत गिराने वाले अपनी फिक्र करें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ड्रामा करते थे कि शहबाज शरीफ आकर सब ठीक कर देगा। शहबाज शरीफ इख्तिदार के लालच में एक्सपोज हो गए। नून लीग अपने टिकट घर में रखे, अब कोई नहीं लेने वाला। इलेक्शन में सिर्फ इमरान खान का टिकट चलेगा। नवाज शरीफ वापस आते ही पकड़े जाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, मईशत डामाडोल हो रही है, स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठा सकता हूँ। वक्त आ गया है कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। मईशत डिमांड करती है कि एक मैंडेट हो। आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। आग घर को खा रही है और हम हुकूमत गिराने में मसरूफ हैं। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में कहा, पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला है। मई में निशानदही की थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट को बताया था कि मईशत सियासी अदम इस्तेकाम की मुतामिल नहीं हो सकती। साजिश से आने वालों की मईशत संभालने की तैयारी नहीं थी। हुकूमत का मकसद अपनी 1100 अरब रुपए की चोरी बचाना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरहदों की हिफाजत करने वाले इदारे की सरबराही की तकर्री मुतनाज़ा न बनाएं। इमरान खान के बयानी की कोई हैसियत नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती बर वक्त और आइन व कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबीना ऑडियो कॉल लीक हो गई। फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म की लीक ऑडियो कई हवालों से तशवीशनाक है। ख़ानदानी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन को बालाए पुश्त रखना शरीफ फैमिली का पुराना वतीरा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल निज़ाम का क़याम करना ज़रूरी है। मुतबादिल निज़ाम के मुकम्मल नफाज में 5 से 15 साल का वक्त लगेगा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को फराहमी इंसाफ के लिए मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। नेशनल जुडिशल कमेटी ने कौमी तनाज़ात कमेटी का क़याम किया है, जिससे तनाज़ात हल का डैशबोर्ड अमल में आएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों के 1000 स्कूलों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों से किसके कहने पर और क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की किसने पेशकश की? जजेस और ब्यूरोक्रेट समेत तमाम मुस्तराद को गाड़ियाँ न देने का मुतालबा। का मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए खुद अमली इक़दाम करना होंगे। गरीब तो अपना हिस्सा डाल रहा है, वो पैदल चलता है, साइकिल पर सफ़र करता है। पैसा साइकिल, पैदल चलने के रास्तों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया जाए। सत्तार ने कहा, हुकूमत तब्दील होते ही दूसरे फरीक पर केसेस का अंबार लगा देती है। मुखालिफिन पर महज इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर केसेस किए जाते हैं। कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाता तो समझना होगा कि क्या यही जमहूरियत है। जुडिशल कॉन्फ्रेंस के खिताब में मजीद कहा, तनकीद या महज इख्तिलाफ पर सोशल मीडिया को बंद नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस से गंदम बरामद करने का इंदिया। कहा, रूस यूक्रेन जंग से दुनिया को तेल और अनाज के बहरान का सामना है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को लाखों टन गंदम दरामद करना पड़ सकती है। शायद रूस से 1 मिलियन टन गंदम दरामद करें, इसमें एतराज़ की बात नहीं। आलमी बिरादरी सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए हमारी मदद करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सऊदी अरब और UAE के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो कुवैत, अज़रबैजान, बेलारूस और श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। बदीन की प्राण नदी में 27 रोज़ बाद पुर किए जाने वाला शगाफ फिर खुल गया। पानी के दबाव से नदी में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी एक बार फिर रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगा। प्राण नदी के पानी से टंडोबागो की 8 यूनियन काउंसिल्स पहले ही पानी में डूबी हुई हैं। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। सैलाब की तबाहकारियों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के 30 में से 23 अजला मुतासिर हुए। फौरी तौर पर खैमे, मच्छरदानियाँ और तरपालें चाहिए। सर्दियों में 85 लाख से ज़ायद गर्म बिस्तर चाहिए। 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के वफ़द की हर मुमकिन मदद की यकीन रहा। आसमा भुट्टो का नवाबशाह में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात। कपड़े, राशन समेत दीगर सामान तकसीम किया।
आसफा भुट्टो वेटरनरी यूनिवर्सिटी में कायम कैंप में भी गईं। नाजिम जोकियो कत्ल केस में फरीकैन की सुलह हो गई। नाजिम जोकियो के वरसा की जानिब से सेशन कोर्ट मलीर में हल्फनामा जमा। कहा मुल्जिमान के साथ सुलह हो चुकी है, केस खत्म करने पर कोई एतराज नहीं। केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। जिन्ना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची के उस्ताद पर तालिबात को हरासा करने का इल्ज़ाम। तलबा कार रफीकी शहीद रोड बंद करके एहतजाज। मुबैना वाक़े पर तलबा ने गुज़िश्ता रोज़ लेक्चरार को ज़दोकोब भी किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक उस्ताद को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुल्क में डेंगू के खतरनाक हमले। कराची में डेंगू से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे में डेंगू के 218 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में मजीद 169 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 226 केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में डेंगू से 44 अफराद मुतासर। इस्लामाबाद में मजीद 85 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। आवाम महंगाई और लोड शेडिंग के हाथों तंग आ गए। कराची पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में निश्तर रोड पर ताजरों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में ताजरों ने सड़क ब्लॉक किए रखी। मुल्तान में मजदूर सड़कों पर निकल आए। बावलपुर में किसानों का कौमी शाहरा पर धरना। मंडी बाउद्दीन जंग में भी बिजली बिलों के खिलाफ मुजाहरा। शुमाली वज़ीरिस्तान में मीरान शाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। राना सनाउल्लाह का महंगाई पर काबू पाने में नाकामी का एतराफ़। कहा महंगाई पीटीआई दौर में शुरू हुई, मुश्किल फैसलों के बायस महंगाई कंट्रोल ना कर सके। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। इसहाक डार आइंदा हफ्ते वापस आ जाएंगे। इसहाक डार के आने से इक़्तिसादी टीम मजबूत होगी। नवाज शरीफ अगले इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में अहलिया को कत्ल करने से मुताल्लिक केस। पुलिस ने मुलजिम के वालिद अयाज अमीर को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। मुलजिम की वालिदा, चचा और चाची के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारे का टायर मुतासर। तर्जुमान PIA के मुताबिक रनवे पर किसी धाती चीज़ के टकराने से तैयारे के अगले टायर की लेयर उतर गई। तैयारा महफूज रहा। तैयारे का टायर